So dear students, today we are studying about the physical divisions of India, physical features of India. And in physical features, today we shall revise about the Himalayan mountain. So the first question which arises is, name the 6 major physical divisions of India. What are the 6 physical Himalayan mountains, India? The Himalayan mountain, the the northern northern plain, the the peninsular plateau, peninsular Indian plateau, desert, the Indian coastal desert, plain, the coastal the plain, inland. the island. Wait a minute. At a time, only one should speak. Listen again. Number 1 is the Himalayan mountains. Number 2, the northern plains. Northern plain, Number 3, northern नहीं बोलते, क्या बोलते? Northern. The northern plains. northern, बोलो तो फिर. northern plain, The northern plains. northern plain, The peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands. ठीक है. और सबसे पहले इसको हम लोग एक बार मैप में देख लें, उसके बाद हम लोग हिमालय की डिटेल में जाएंगे. See here. Are you seeing this map of India, physical map of India? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This whole dark portion, which is in dark brown color in your book, generally mountains are shown with brown color. So the thick lines are showing the mountain ranges, and the whole region from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh and the eastern border of India, extremely eastern border of India. All these are the regions of the mountainous area, which is known as the Himalayan mountain. Okay, so there are 3 parallel ranges of Himalayas. This one range is known as the Greater Himalayas, then the Lesser Himalayas, and the last one is the southernmost range is the Shivalik range. So we will go in detail about all the mountain ranges of Himalayas. And then in between the Himalayan mountain and the plateau region, peninsular plateau region, in between the Himalayan mountain and peninsular plateau region lies the northern plain, which are full of many perennial rivers. This region is the northern plain, where number 2 is written. This is northern plain. And number 3 is the peninsular plateau. डेक्कन प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड, उसके 2 पार्ट्स हैं. ठीक है ना. पूरे को मिला के क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं. The whole of this triangular plateau is known as peninsular plateau, and it is divided into 2 parts. The northern part is known as central highland, and the southern part is known as Deccan plateau. समझ गए ना? देख रहे हो? तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये अरावली से लेकर के विंध्या रेंज तक और नर्मदा रिवर तक, और इधर में ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटो तक, ये जो पीस है, ये प्लेटो का ये जो हिस्सा है, इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड. और सतपुरा रेंज से लेके पूरे एंड तक, है ना, पेनिनसुलर इंडिया के एंड तक, ये जो प्लेटो रीजन है, इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटो. ये नंबर 3 हो गया, है ना. नंबर 3 में ही इसके 2 पार्ट्स है, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो. लास्ट एग्जाम में तुमको क्या आया था बताओ? सेंट्रल हाईलैंड आया था ना? Yes, ma'am. हाँ. अच्छा, अब देखो, ये है कोस्टल प्लेन्स. दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. West of the Western Ghat mountain, there is a narrow plain which is known as Western Coastal Plain, and on the east of the Eastern Ghat is the Eastern Coastal Plain. So you are seeing this in this map, that the Eastern Coastal Plain is broader and the Western Coastal Plain is narrower. So this is about the physical division of India, and the last one which you can say, and number 4 is the Great Indian Desert. This is this part. This lies on the west of Aravali range. ये अरावली रेंज देख रहे हो ना यहाँ पे मैप में? Yes, ma'am.
अरावली रेंज का Yes, ma'am. अरावली रेंज का लोकेशन बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में मार्क करने के लिए आता है, मैप वर्क में अरावली दिखाने के लिए आता है, इसलिए तुम उसको ना अच्छे से ध्यान में रख लो कि अरावली के लिए किस तरह से लाइन डिमार्केट करेंगे। ये थिक लाइन देख रहे हो ना, यही है अरावली माउंटेन। And on the west of the Aravalli mountain lies the Great Indian Desert. What is the other name for Great Indian Desert? Ma'am, बोलो। Third is Thar Desert. हाँ, third is the Great Indian Desert is also known as Thar Desert. third is Or Thar Desert also continues towards the west of India in Pakistan also, right? And the last group is the Andaman Nicobar group. Andaman Nicobar group and the Lakshadweep group of islands. Lakshadweep. So there are two groups of islands, Lakshadweep in the Arabian Sea and Andaman Nicobar in the Bay of Bengal. Bay of Bengal. Okay, so this is all about the physical features of India, and now we shall proceed to the chapter detail of the Himalayan mountain. How Himalayas are formed? Himalayas are formed by the folding of the Mountains. rock, folding of sedimentary rock. रुको तुम्हें दिखाते हैं एक ये दिखाते हैं डायग्राम. Are you seeing this? Yes, ma'am. दिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इसको Yes, ma'am. एक एक करके इस डायग्राम को हम दिखाते हैं तुम्हें कि किस तरह से माउंटेन का फोल्डिंग होता है ना? देखो फोल्डिंग क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोल्डिंग, फाउल्टिंग एंड वोल्केनिक. Volcanic eruption. हाँ, ये टर्म्स देखो, these are geographical terms, folding, faulting and volcanic eruption. The first diagram shows layer of rocks, है ना? ये देखो, ये क्या है? नंबर वन, डायग्राम नंबर वन shows the layer of rocks, है ना? जैसे एक एग्जांपल 3 layers बना दिया गया है रॉक का यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे? लेयर्स ऑफ रॉक. और लेयर्स ऑफ रॉक में अगर किसी भी तरफ से, इस तरफ से या दूसरे साइड से भी कंप्रेशन हो, मतलब प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है? ये इसकी फोल्डिंग हो जाती है. तो ये तीनों लेयर ऐसे करके फोल्ड हो जाते हैं. तो फोल्डिंग होने से माउंटेन बनता है. ठीक है, जितने भी वर्ल्ड के न्यू माउंटेन्स हैं वो सब रॉक्स के फोल्डिंग से बनते हैं. तो फोल्डिंग रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. Have you understood the meaning of folding? Folding means Yes, ma'am. due to the lateral compressional force on the sedimentary rocks, they are buckled up or folded, and this folding helps in formation of mountain. Mountains. तो देखो इन जो हिमालय माउंटेन है वो तो टेथिस सी में बना हुआ है ना? टेथिस सी था, मतलब एक गैप था. सबसे पहले 2 बड़े लैंड मास थे. नॉर्दर्न लैंड मास को एंगारा लैंड कहते थे और सदर्न लैंड मास को गोंडवाना लैंड कहते थे. याद है ना? क्योंकि बहुत, अगर हम जियोलॉजिकल पास्ट में जाएं तो सारे कॉन्टिनेंट ना एक साथ जॉइंट थे, तो उसको हम कहते हैं क्या? पैंजिया. All the continents which were joined together one was known as Pangaea. याद है तुमको पैंजिया? अच्छा, पैंजिया Yes, पैंजिया पहले 2 पार्ट्स में बटा. ठीक है, अभी कितने 30 पार्टिसिपेंट्स. तो पैंजिया पहले 2 पार्ट्स में बटा और नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहा गया? बोलो. गोंदवाना. नहीं, अंगारा लैंड. अंगारा लैंड. Angara land. अंगारा लैंड. और सदर्न पार्ट को कहें गोंडवाना लैंड. Gondwana land. अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक गैप बन गया जिसमें सी वाटर था. ये शैलो था. और शैलो, हाँ, शैलो मतलब जिसकी गहराई कम हो. तो गहराई कम वाली सी थी ये शैलो सी, विच वाज लाइंग बिटवीन अंगारा लैंड एंड द गोंडवाना लैंड. ये सी धीरे धीरे भरता चला गया, है ना? सेडिमेंट से भरते चला गया सी, और भरने के बाद
वो क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक तैयार हो गया। इस तरह का लेयर्स ऑफ रॉक तैयार हो गए वहां पे। कहाँ पे, टेथिस सी में ऐसे सेडिमेंट्री लेयर्स तैयार हो गए रॉक्स के। इसी को कहते हैं लेयर्स ऑफ रॉक या सेडिमेंट्री रॉक भी इसको कहते हैं। अब प्लेट मूवमेंट के वजह से, प्लेट मूवमेंट की वजह से मतलब जो सदर्न प्लेट था वो इसको इधर से पुश किया, है ना। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था उसने यूरेशियन प्लेट को पुश किया, तो ये रॉक्स जो है वो फोल्डेड हो गए, बकल्ड अप हो गए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फोल्डिंग ऑफ रॉक। सो हिमालयाज आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, and these rocks were accumulated in the Tethys Sea. ये रॉक्स कहाँ के रॉक्स थे, टेथिस सी में जो जमा हुए थे। टेथिस सी भर गया था और साउथ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब नॉर्थ की तरफ मूव किए तो यूरेशियन प्लेट को वो पुश किए, और दोनों प्लेट के बीच में कौन सा सी था, टेथिस सी था। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में कौन सा सी था, टेथिस। तो टेथिस के रॉक्स पे दबाव पड़ा जिससे कि वो 3 सेडिमेंट्री लेयर्स में बट गए, और इसी तरह से वो क्या बन गया, 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास बन गए। ठीक है, अब इसी में एक दो टर्म और भी समझ लो। फोल्डिंग के बाद ये फाउल्टिंग, फाउल्टिंग किसको कहते हैं, फाउल्टिंग कहते हैं कि इसी सेडिमेंट्री लेयर में, ये जो लेयर ऑफ रॉक्स हैं, इसी सेडिमेंट्री लेयर ऑफ रॉक्स में अगर इंटीरियर फोर्स की वजह से, अर्थ के इंटीरियर फोर्स की वजह से सरफेस पे टेंशन होता है, टेंशन मतलब खिंचाव, तो खिंचाव होने से लॉन्ग क्रैक बन जाते हैं, और ये क्रैक बन गया तो इसमें क्या होता है, दोनों लेयर अलग अलग हो जाते हैं, दरार पड़ जाती है। लॉन्ग क्रैक को फाउल्टिंग कहते हैं। लॉन्ग क्रैक ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज फाउल्टिंग। बोलो, व्हाट इज फाउल्टिंग? Long crack on the Earth's surface is called faulting. हाँ, and this is caused due to the interior force of the earth. ठीक है, अब इंटीरियर फोर्स हम वो भी देखेंगे किस तरह से जनरेट होता है इंटीरियर फोर्स। और ये लास्ट में हमें एक और डायग्राम है, इसका मतलब क्या है, वोल्केनिक इरप्शन। volcanic eruption. हाँ, वोल्केनिक इरप्शन इज आल्सो ड्यू टू द इंटीरियर फोर्स ऑफ द अर्थ। अंदर जो रॉक है वो सेमी लिक्विड स्टेट में है ना। क्रस्ट के बाद, क्रस्ट तो पहला लेयर होता है, क्रस्ट के अंदर मेंटल है, और मेंटल के भी नीचे क्या है, कोर है, तो वो सब सेमी लिक्विड स्टेट में है। तो वहां जो कन्वेक्शनल करंट तैयार होता है वो जब ऊपर की तरफ फोर्स करता है तो अर्थ सरफेस पे जहां भी वीक जोन है वहां से वो मैग्मा बाहर निकलने लगता है। मतलब सेमी लिक्विड मटेरियल अर्थ के इंटीरियर का जो है वो ऐसे बाहर फोर्स से बाहर निकलने लगता है, तो उसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग 4 ज्योग्राफिकल टर्म पढ़े, क्या क्या पढ़े बोलो? Layer of rock, folding, faulting, Folding, eruption. volcanic eruption. हाँ, फोल्डिंग, फाल्टिंग, Volcanic eruption. हाँ। अब इसके भी पहले एक देखो, अर्थ के इंटीरियर का एक डायग्राम देखो। ये डायग्राम तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे क्लास 8 में, Yes, ma'am. पढ़े थे ना? Yes, ma'am. देखो, एक क्वेश्चन क्या हमने लिखा है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इंटीरियर स्ट्रक्चर अर्थ का कैसे दिखाते हैं? अर्थ बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल शेप में है, तो जो क्रस्टल लेयर है, जो ऊपर का लेयर है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे प्लांट्स हैं, जिसपे मिनरल्स हैं, जिसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट इज द थिनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये पहला लेयर है, ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड है, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। और इसका ये नेम क्या हो गया, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, और उसके बाद का जो अंदर का जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। ये सेमी लिक्विड स्टेट में है, दिस इज इन सेमी लिक्विड स्टेट। इसके भी अंदर क्या है, कोर, नीफे। हाँ, who is speaking? Who is speaking? Shut your mouth. Who is creating noise? Bad manners. Shut your mouth.
बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन ऐसा दिमाग है किसका जो इस तरह का बेवकूफी कर रहा है? 31 पार्टिसिपेंट्स में से हम उसको क्लास के बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल। मैम उसको रिमूव कर दीजिए। हाँ बिल्कुल रिमूव कर देना है। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ऐसे इंटरप्शन हो गई ना, पढ़ाई का 2 मिनट बर्बाद हो गया। तो अभी 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, 33 भी थे। पार्टिसिपेंट्स लेट से आते हैं। तो ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, है ना, विच इज सॉलिड लेयर। व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्रस्ट? बोलो। लिथोस्फीयर। Soil. हाँ लिथोस्फीयर, और सियाल भी नाम है इसका, और इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। मेंटल इज सेमी लिक्विड एंड कोर इज ऑल्सो सेमी लिक्विड, but it appears solid. Why? Because of the upper pressure of the layers, it appears as solid, but it is also in semi-liquid state. So all are in semi-liquid state except the crust, which is also known as lithosphere. ठीक है, तुम लोग को अब अगले ये में इतना डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जब माउंटेन का, हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ना है तो प्लेट टेक्टोनिक का थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ये जो क्रस्टल लेयर है ना, यही कई सारे फ्रैगमेंट्स में, मतलब बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, मेजर एंड माइनर पीसेस में बटा हुआ है, और ये इसके ऊपर मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और वही हिमालय के फॉर्मेशन में तुमको बताए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसको पुश किया? मच ग्रेटर यूरेशियन प्लेट को पुश किया, है ना। तुम्हारे पास बुक में प्लेट्स के मैप भी हैं, और उसको मैप देख करके तुम इजीली इसको समझ सकते हो कि किस तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को पुश किया, और यूरेशियन प्लेट को पुश करने के दौरान जो बीच में टेथिस सी था, उसके सेडिमेंट्स बकल्ड अप हो गए, मतलब फोल्डेड हो गए, और फोल्डिंग होने से क्या बन गया? हिमालयन माउंटेन बन गए। 3 फोल्ड हुए, और 3 फोल्ड से क्या पता चलता है कि हिमालय के 3 पैरेलल रेंज बने। ठीक है ना, 3 पैरेलल रेंज क्या है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जिससे हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, हिमाचल को क्या कहते हैं? लेसर हिमालयस कहते हैं, और शिवालिक को क्या कहते हैं? आउटर हिमालयस, है ना। तो इस तरह से हिमालय के 4 लेयर्स हो गए। तो ये डायग्राम तुम लोग समझ लिए। अब हम तुम्हें हाँ, अब फिर किताब पे आ जाओ। तो हम लोग डिटेल में आज क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिमालय की 3 पैरेलल रेंज समझ गए क्या क्या है? बोलो, नाम रिपीट करो। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक. शिवालिक। Which one is the highest? Himadri. The highest. And next in height, Himachal. So this first one is Himadri, next is Himachal, Himadri. the last one is Shivalik. Shivalik is of lowest height. ठीक है ना, लोएस्ट हाइट का कौन सा है? शिवालिक है। हाँ, अब यहाँ देखो, अब पढ़ना, बोलना नहीं, अभी तुम्हारी आवाज ना लिंगरिंग हो रही है, चुप रहो। यहाँ से देखो, द हिमालयन माउंटेन, द हिमालयास जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। स्ट्रक्चरली मतलब बनावट के हिसाब से कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। और जियोलॉजिकली कैसा है? यंग माउंटेन। यंग मतलब न्यू माउंटेन है, इसका फॉर्मेशन रिसेंट हुआ है। यहाँ पर पेंसिल से एक वर्ड लिख लो, टर्शरी पीरियड। लिखो तो, TERTIARY, टर्शरी पीरियड। स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
Yes, ma'am. हाँ ठीक है। तो रिसेंट क्यों कहा गया? हिमालयाज आर वेरी रिसेंट और यंग इन देयर फॉर्मेशन बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म ड्यूरिंग टर्शरी पीरियड। टर्शरी स्पेलिंग क्या लिखोगे? TERTIARY, टर्शरी पीरियड। हिमालय टर्शरी पीरियड में बना है, ठीक है। फिर यहाँ देखो, दे फॉर्म नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर हिमालय से ही बनता है। These mountain ranges run in a west-east direction from Indus to the Brahmaputra. Indus कश्मीर में हो गया और ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में इसका एंड है ना, इंडिया के अंदर। तो मतलब वो कॉर्नर है, ब्रह्मपुत्रा बनाती है। और फिर द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट मतलब हाईएस्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड, रगड मतलब वेरी अनइवन, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत अनइवन है। रगड माउंटेन बैरियर्स, बैरियर्स मतलब वही रुकावट, ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क, आर्क मतलब ऐसे हाफ ऐसे ये होता है ना, कर्व्ड शेप होता है हाफ मून की तरह, तो उसको क्या कहते हैं? आर्क। हाँ आर्क कहते हैं। तो आर्क शेप में हिमालय है। और लॉफ्टीएस्ट तो है ही क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसका हाईएस्ट पीक है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पीक्स हैं जिसमें से करीब 10 पीक्स का लिस्ट तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। मतलब कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो वो कितना किलोमीटर की लंबाई में है? 2400। हाँ 2400। हाँ, ये उसकी लंबाई याद रखना हिमालय की। और उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? Their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब ये हो गया कि कश्मीर में ये ज्यादा ब्रॉड है, इसकी विड्थ ज्यादा है, 400 किलोमीटर विड्थ है। और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते ये तीनों रेंज नैरो हो जाते हैं, बहुत एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो वहां पे चौड़ाई कितनी है? सिर्फ 150 किलोमीटर है। The altitude varies. The altitude variations are greater in the eastern half than those in the western half. Altitude मतलब height. Height किधर ज्यादा है? Height east की तरफ ज्यादा है। तो दो कंट्राडिक्शन देख रहे हो यहाँ पे कि विड्थ ज्यादा है वेस्ट की तरफ और हाइट हिमालय की ज्यादा किधर है? ईस्ट की तरफ। Now you tell me on which direction is it, the range is highest? Towards Eastern. Yes. Eastern Himalayas is more higher than the Western Himalaya. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. Valley मतलब दो high mountain के बीच में जो low land होता है उसको valley कहते हैं, है ना? और ये V shape होता है ज्यादातर। The northernmost range is known as Greater or Inner Himalayas और हिमाद्री। इसके 3 नाम हो गए, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयास और ग्रेट हिमालय, इनर हिमालयास और हिमाद्री, ठीक है। फिर ये देखो, it is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. अब देखो यहाँ तुमको एक क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन लिखो तो name write about 3 characteristic features of the Greater Himalayas. Start writing. Always be ready with your book and copy. Mention or write 3 characteristic features of Greater Himalayas or Great Himalayas. तो इसमें क्या क्या लिखोगे कि ग्रेटर हिमालय इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, एक ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इट इज द हाईएस्ट रेंज, ठीक है। आर यू लिसनिंग? हाँ, वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट भी है और सबसे हाइट में भी सबसे ज्यादा है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर 6000, इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। कंटिन्यूअस मतलब बीच बीच में बहुत कम ये ब्रोकन है, ये जो रेंज है वो इसकी डिसकंटिन्यूटी बहुत कम ही जगह है, वो ज्यादातर कंटिन्यूअस है।
और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रेटर हिमालयस का या हिमाद्री का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो कंटिन्यूअस रेंज है और इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। ये सब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे। एंड इट कंटेन्स प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और यहाँ कुछ हिमालयन पीक्स के नाम लिखना होगा, एग्जाम्पल देना होगा। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? लाइक माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नमचा बरवा, है ना, ऐसे ऐसे करके 3-4 एग्जाम्पल तुम दोगे। कंचनजंगा, कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया में है ना। हाँ, केटू नहीं लिखना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि केटू ना काराकोरम रेंज में है। तुमको दिखाते हैं काराकोरम रेंज। ये देखो कश्मीर में, ये मैप देखो, दिस इज काराकोरम रेंज। ये दिख रहा है, माउस दिख रहा है ना, काराकोरम रेंज। ये तो Yes, ma'am. ये ना हिमालय के बियॉन्ड है, हिमालय से नॉर्थ में है। हिमालय के तो ये 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक। ये तीनों हिमालय के रेंज है और ये सारे हिमालय के बियॉन्ड माने जाते हैं। तो काराकोरम रेंज में हाईएस्ट रेंज पीक जो है वो है केटू। समझ गए ना? तो इस तरह से ना तुमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखना है। आज ये क्वेश्चन तुम लोग फिर से लिखोगे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस। अगर तुम फेयर कॉपी में लिख चुके हो ये क्वेश्चन की लिखना बाकी है, बोलो। तो इसको फिर से लिखना। एक क्वेश्चन लिखो तो, नेम 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस, नेम 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस and write their characteristic features। तो कम से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखोगे तीनों रेंज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखो सारे माउंटेन रेंज का नाम लिखा, पीक्स का नाम लिखा हुआ। पीक मतलब ये जो सिंगल एक होता है ना, सिंगल ऐसे कोनिकल शेप, इसको पीक कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, बुर्ला मंदाता। इसमें से बहुत सारे तो नेपाल में है, ये इंडिया में है। नंदा देवी, ये नंगा पर्वत कश्मीर में है। नंगा पर्वत क्यों नाम है? क्योंकि इसके ऊपर वेजिटेशन कवर नहीं है। नंदा देवी उत्तरांचल में है। अच्छा, नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास है। और इसमें से सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो इंडिया में है, वो है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे माउंटेन रेंज का मतलब हिमाचल का तुम यहाँ से देख के कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखोगे। पहले तो इसका पोजीशन लिखना कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो हिमाचल लाइज जस्ट साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज and these ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies from 3700 to 4500 meters. ये सारे इसके characteristic features हैं इसके हिमाचल के। And the average width is 50 kilometer, while the Pir Panjal range forms the longest and the most हाँ। और इसके बाद तुम्हारा लास्ट रेंज क्या बच जाता है? शिवालिक। शिवालिक के बारे में तुम लिखना कि इट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस एंड विड्थ इज 10 to 50। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया, 10 to 50 किलोमीटर एंड अल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated. Unconsolidated मतलब लूज मटेरियल, लूज सेडिमेंट के जमा होने से ये बना है, जो कि रिवर से लाए गए हैं, रिवर के द्वारा लाए गए हैं। And Himalayan range are located farther north. These valleys are covered with thick gravel, है ना। तो thick gravel, alluvium, ये सब से ये बना हुआ है। इसलिए ये लूज मटेरियल से बना होने के कारण क्या है, बहुत अर्थक्वेक के लिए प्रोन एरिया है, मतलब डेंजरस एरिया है अर्थक्वेक के लिए। और the longitudinal valleys lying between lesser Himalaya and Shivalik are known as Doon. lesser Himalaya मतलब बीच वाला रेंज और जो आउटर रेंज है शिवालिक, उन दोनों के बीच में जो वैली एरिया है उसको दून्स कहते हैं।
जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये सब, है ना। तो आज हम लोग इतने हिमालय का ही पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग का क्लास भी ऑलमोस्ट